Good morning, students. Once again, I am Sunil Sinha with the video of poem 2 for class 10th, that is Fire and Ice. In this poem, the poet Robert Frost is expressing the human emotions. He had chosen the word fire and very beautifully contrasted with the human feelings, or you can say emotion, that is desire. And another word there is ice, and its human emotion is hatred, hateness, you can say. And in this poem he is saying how these two human emotion leads to the destruction of our beautiful earth where we live. Okay, without wasting our time, let's start the poem. See, some says the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. मतलब पोएट जो है इन दोनों ही लाइन में कहते हैं कि किसी किसी का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि ये वर्ल्ड जो होगा वो एंड होगा, मतलब ख़त्म होगा या डिस्ट्रॉय होगा, उसका रीज़न जो होगा वो फायर हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ना, वो आइस होगा. ओके, सो इन दोनों ही लाइन में आप लोग देख सकते हैं सम से मतलब सेम वर्ड से ये स्टार्ट हो रहा है लाइन, दो लाइन किसी पोएम में. तो आप इस स्टाइल को एक पोएटिक डिवाइस का नाम दे सकते हो, दैट इज़ एनाफोरा. मतलब किसी भी पोएम में सेम वर्ड से दो लाइन भी अगर स्टार्ट हो तो उसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं. ओके, और जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक अजीब तरह का इमेज क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ द सीन ऑफ वॉर, बर्निंग फील्ड्स, बर्निंग हाउसेस. नो, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन द लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द पोएट हैज़ यूज्ड imagery also, and imagery is a poetic device in which whenever you read that line the image will be created in your mind. Okay, so there is imagery and anaphora both. Now we will move toward the third line of first stanza. From what we have tasted of desire. Okay, फ्रॉम वॉट वी हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. ये सेंटेंस कुछ आधा अधूरा लग रहा है ना. इंजैम्बमेंट कहते हैं इसको, पोएटिक डिवाइस है इंजैम्बमेंट, वो है यहाँ पे. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब यहाँ पे थर्ड लाइन में पोएट का कहना है कि जैसा कि मैं डिज़ायर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, डिज़ायर को हम एक तरह से कह सकते हैं वो एक तरह का ग्रीड भी है या जेलसी है, तो इस चीज़ से हमारा अर्थ जो है ज़रूर नाश हो सकता है. इसलिए ये पोएट कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों का साथ देना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है फायर से डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. तो दोनों ही लाइन को फिर से हम लोग देखते हैं और ये कन्फिगर करते हैं कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है. इन द लाइन फोर्थ ऑफ फर्स्ट स्टांजा, दैट इज़ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, देयर इज़ टू फिगर ऑफ स्पीच. द फर्स्ट वन, होल्ड और दोज में ओ का साउंड स्ट्रेस्ड साउंड है इसलिए, और ओ साउंड जो है वो कौन सा साउंड होता है, दैट इज वॉवेल साउंड. सो इफ वॉवेल साउंड इज रिपीटेड इन अ सिंगल लाइन देन इट इज एसोनेंस. नो, another word we will figure out.
The last word, favor, fire. Both word starts with fa sound, and fa sound is a consonant sound, so there is alliteration also. In the line 4 of first stanza, there is two figure of speech. Okay, you can say poetic device also. Okay, so in the first stanza, see, I will explain again in English, so listen again carefully. The poem expresses the profound idea that world would end in either of two ways, ice or fire. Means its reason will be two only, that is ice or fire. One is of the opinion that someday it would lead to fire destroying the earth. A poet has supported one person na earlier. That's why, because of he has tasted it. He has tasted it means what? He has not eaten. He has experience. That's why he told he will support or he will favor those who says that it will end with fire. And the other says, if the temperature goes down to an extent that makes life impossible on earth. Okay, that's why ice will be also a great reason. The poet then compares fire and ice with destructive feature of human emotion, desire. Lastly, in the first stanza, he compares human emotion, that is desire. Then he favors those who says that it will end with fire. Now we will move toward the second stanza. But if it had to perish twice, perish destroy कहेंगे, ख़त्म होना, twice दोबारा अगर अर्थ को पेरिस होना पड़ा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. वहाँ पे कहा था उसने टेस्ट किया है डिज़ायर को, मतलब एक्सपीरियंस है उनके पास डिज़ायर कैसा होता है वो. अब वो कह रहे हैं कि मैं हेट के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ. हेटनेस, हेट्रेड, पैशन जो होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. अब वो कह रहे हैं अगर कहा जाए डिस्ट्रक्शन के लिए तो आइस भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल थिंग है जो यहाँ पे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है. एंड वुड सफीस. अब ये भी कह रहे हैं कि आइस के पास भी वो सफिशिएंट पावर है जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है. अब इस लाइन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग. देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर ही कंसिडर्स इफ द वर्ल्ड हैज़ टू डिस्ट्रॉय टॉयस, आइस will be equally competent in destroying the earth. He brings contrast between ice and hatred. Hatred is also a human emotion. Hatred has the potential of inner destruction. आप लोगों ने सुना होगा ईर्ष्या जो होती है या क्रोध जो होता है इंसान को खुद नाश के तरफ लेके जाता है. तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं, हेट्रेड जो है हमारे अंदर वो इनर डिस्ट्रक्शन करता है. दो स्लोली एंड स्टीडली इट हैज़ द सेम इफ़ेक्ट एज डिज़ायर. जितना इफ़ेक्ट डिज़ायर का होगा उतना इफ़ेक्ट इसका भी होगा, मतलब हेट्रेड का भी होगा. सो इफ़ ऑप्शन इज़ गिवन टू डिस्ट्रॉय द अर्थ, that is ice or fire, ice would be as good as fire to destroy the world. Got it? And it will be sufficient to destroy the earth. So by this poem the poet actually wants to say two darkest traits of human, that is hate as ice
and the capacity to be consumed, that is fire or lust, you can say lust also. तो इसमें हम लोग एक्चुअली ये पोएम जो है वॉर के ऊपर लिखा गया है. 2 aspects of fire and ice shows war faced by the world today due to hatred and desire. That's it. पोइट का यहाँ पे कहना है ओपैक थिंग को वो यूज़ किए हैं और एक तरह से हमने कहा कि ह्यूमन इमोशन से उन्होंने कंपेयर किया है. तो इस पोएम में हम लोग पर्सनिफाइड भी कह सकते हैं, पर्सनिफिकेशन किया है उन्होंने, पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है. इस तरह से ये पोएम है. और अबाउट द रॉबर्ट फ्रॉस्ट you already know in previous class also, and for the previous poem also, as the Navneet sir has told you already. So that's it for today. Thank you. Have a nice day.